شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل تمام بہن بھائیوں کو سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ میرے عزیزو، آج صبح سویرے مجھے کسی نے کال کی اور کہا کہ آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اگر اجازت ہو تو آپ اس کا جواب دے دیں۔ میں نے کہا جی ضرور، آپ سوال کریں، اجازت کی کیا بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی انسان پہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ آپ کا سوال ادھورا ہے، پورا نہیں ہے۔ کہنے لگی جی کیسے؟ تو میں نے کہا کہ آپ کس مصیبت کو جاننا چاہتے ہو کہ کیوں آتی ہے؟ کیا مصیبت غربت کی ہے، تنگ دستی کی ہے؟ مصیبت کئی طرح کی ہے، کوئی چوٹ لگ گئی وہ درد کی مصیبت ہے، کام نہیں ہے اور بچہ نہیں ہے گھر میں، یا گھر نہیں ہے، تو کس طرح کی مصیبت آپ سمجھتے ہیں جس کو مشکل سب کہتے ہیں، مصیبت کہتے ہیں، دکھ کہتے ہیں، تکلیف کہتے ہیں، غربت کہتے ہیں؟ تو کس طرح کی آپ مصیبت جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں آتی ہے؟ کہنے لگے کہ جی مصیبت یعنی کہ غربت یا کسی طرح کی بھی مصیبت۔ تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام جو ہے یہ ایک چراغ کی مانند ہے، جس کا داؤد ذکر کرتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تو ہمیں کلام کی روح سے بات کرنی ہے، اس کی روشنی میں بات کرنی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں حوالے نہیں دیتا، میں اس کا روٹ بتاتا ہوں تاکہ آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو علم دوست ہیں، جو بائبل کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ MIK کی کتابیں ضرور پڑھا کریں۔ وہ ایک تسلی بخش ادارہ ہے جو بڑی محنت کرتے ہیں، اور پھر اس کتاب کے تلفظ، لفظ، اس کے معنی، اس کی جگہ ٹھیک استعمال کی گئی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آج تو ہر بندہ پادری بن گیا ہے اور ہر بندہ رائٹر بنا ہوا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ بہت بڑا مصنف ہے، اور دوسروں کی کتابیں اٹھا کے اس میں سے کچھ حصہ لیا اور کچھ اپنے لفظوں میں اس کو ڈھال کر کتاب کے مصنف بن جاتے ہیں۔ اور یہ چیٹنگ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ دھوکہ ہوتا ہے، بھلے وہ پیسے کا ہو، بھلے وہ کتابی صورت میں ہو، اور بھلے کسی طرح سے بھی۔ تو جو پوائنٹ ہے وہ غور طلب ہے کہ انسان پر مصیبت کیوں آتی ہے۔ تو داؤد کہتا ہے کہ مصیبت سے پختگی پیدا ہوتی ہے، اور پختگی سے صبر پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ کلام مقدس میں کہ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ جاؤں۔ اور پھر عبرانیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ جو تبی پاتا ہے، جو دکھ پاتا ہے اور سہتے سہتے پختہ ہو گیا، آخر کو ان کی جانیں آرام پائیں گی۔ جو لوگ دکھوں میں سے نہیں گزرتے۔ اب ایک اور مثال ہے، جو بچے سیزیرین پیدا ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، اور ان کو سردی بڑی جلدی لگ جاتی ہے، وائرس بڑی جلدی لگ جاتا ہے، کسی طرح سے بھی کوئی بھی موسمی اثر ہو ان پر بہت جلدی اثر ہوتا ہے۔ لیکن جو بچے فطرتاً
खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक पैदा होते हैं, उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा होती है, वो सह जाते हैं। इसी तरह से जो लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं, जिन्होंने कभी कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं की, जिन्होंने कभी नाकामी देखी नहीं, जब उनके कानों में नाकामी की या फेलियर की कोई खबर आती है तो एकदम से वो ठुस हो जाते हैं। कईयों ने खुदकुशी कर ली, कईयों के हादसे हो गए, कई इतने डिसार्ट हो गए कि उनका दिमाग चल गया, पागल हो गए। तो मैं नाम बता सकता हूं, लेकिन अच्छा नहीं कि मीडिया पर या किसी मैसेज में किसी का नाम दिया जाए। बस आप समझदार हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा लोगों के हालात का कि उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। तो इसलिए इस बात को बड़ी तवज्जो से सुने और मुसीबत से कभी भी उकताए ना। जो ईंट पूरी आग लेती है वो रेत लेती है, खूबसूरत हो जाती है, उसको कहते हैं फेयर फेस, वो फ्रंट पे लगाई जाती है। और जो आग नहीं लेती वो मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, टेढ़ी हो जाती है, खिंगर बन जाता है। इसलिए इन बातों को आप अपने जहन में रखें कि हमें पूरे तौर पर मुसीबतों से भागना नहीं है। आप जितने लोगों को देखेंगे जो आज कामयाब हैं, फिल्म इंडस्ट्री में देख लें या थिएटर में देख लें या बिजनेस में देख लें, कोई कहेगा कि मैंने शुरू में सब्जी बेचना शुरू की थी, थोड़े से आलू थे, थोड़ी सी भिंडियां थी, बस इस तरह से मैंने शुरू कर दिया। और किसी ने कहा कि जी मैंने मोहल्ले में लड़कों के साथ बैठ के मजाक और लतीफे शुरू किए, मैं थिएटर तक पहुंच गया। किसी ने कहा कि जी मैं स्कूल में एक्टिंग करता था, आज मैं बॉलीवुड का या हॉलीवुड का मैं एक्टर बन गया। हर सीढ़ी का जो पहला डंडा है वो जमीन के साथ ही होता है। कभी कोई सीढ़ी ऊपर से शुरू नहीं होती। हां, एक सीढ़ी जरूर ऊपर से नीचे लगी और वो थी याकूब की। जब एसौ उसको मार देना चाहता था, याकूब घर छोड़ के भागा और बैतेल में, यरूशलेम के करीब एक जगह है, वहां पर आकर उसने रात गुजारी। उसी ने उस जगह का नाम बैतेल रखा। तो सीढ़ी ऊपर से नीचे आ रही थी, जहां पर वो सर रख के सो रहा था, उसका पैंदा उसके करीब खत्म होता था और फरिश्ते आ जा रहे थे। और ये वही एरिया है जहां पर फरिश्ते गडरियों के पास भी आए। वो भी वही एरिया है, बैतेल और बैतलहम, ये करीब करीब जगह है। समझ ले कि एरिया वही है लेकिन उसके पॉइंट डिफरेंट है। पहाड़ी की चोटी सेम है, पहाड़ी भी वो सेम ही है, मैंने अपनी आंखों से देखी है वो जगह। तो ये बात गौर तलब है कि वो भी मुश्किल में बैठे थे जो चरवाहे थे और उनको ऊपर से सीढ़ी मिल गई। याकूब भी परेशानी में था, कुछ पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन उस परेशानी में उसको रास्ता मिल गया ऊपर से। ये बहुत कम होता है, लेकिन याकूब भी मुश्किल से, मुसीबत से भागा था, उस पर भी मुसीबत थी। अब उसका जो लेबोरेटरी टेस्ट था वो बहुत बड़ा था, 21 साल का टेस्ट था।
21 साल के बाद वो वापस आया, और जब वापस आया तो उस वक्त तक उसकी मां मर चुकी थी। फिर उसकी जिंदगी में इतनी मुसीबतें आई, मां मर गई, भाई जो है वो कत्ल करने के दर पे है, और रास्ते में बीवी मर गई। फिर उसके बच्चों ने उसके साथ बड़ा ड्रामा किया, लेकिन इस तमाम हालात की जद में आकर वो जो मजबूत हुआ, वो जो पुख्ता हुआ, आज पूरी दुनिया में उसकी नस्ल एक कौम कहलाती है और उसको कहा जाता है इसराइल। कनाडा, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, ईस्टर्न कंट्रीज, सब के सब उस कौम से डरते हैं। कहते हैं ये बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े ज़हीन हैं। वजह 60 लाख हिटलर ने यहूदी मार दिए। 440 साल ये कौम मिस्र की गुलामी में रहे। फिर 40 साल ये बियाबान में खज्जल होते रहे, ख्वारी उठाई। जितने लोग वहां से निकले थे सब के सब पुरानी नस्ल के बियाबान में मर गए। जो नई जनरेशन थी वो मजबूत हुई, रास्ते में उन्होंने लड़ाई करना सीखा, गरीबी देखी, एक ही तरह का खाना खाते रहे, दुखों में से गुजरे। कदम कदम पर लड़ाइयां हो रही हैं, कभी अमालिकियों के साथ, कभी अदूमियों के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। कोई मुर्दा भी नहीं दफन करने दे रहा। यहां तक कि अदूमियों की बड़ी लड़ाई हुई जब वो लेकर यकूब की लाश को लेके आए, और जब वो यूसुफ की हड्डियों को लेके आए तो उस वक्त भी लड़ाई हुई। ये कुछ छोटी सी बात है, क्योंकि ये जो जिस्म है, इस जिस्म में दुख लाजमी है। मैं अक्सर इस बात का हवाला देता हूं कि तितली जो है, जब आप उसकी जिंदगी पर स्टडी करें, गौर करें, तो उसके परों में जो रंग आते हैं वो उसकी तकलीफों की वजह से आते हैं। और फिर ये जो आपके हाथ में रसाले आते हैं, तस्वीरें आती हैं, तो एकदम से ये कलरफुल तस्वीर नहीं होती। जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसको कहते हैं दाब। ये प्रिंटिंग प्रेस में जाती है। अगर 4 कलर है तो 4 टाइम इस पेपर ने उस मशीन की दाब में से, उसके दबाव में से गुजरना है, और फिर बार बार जो उसका प्रिंटिंग का मास्टर है वो देखता है कि ठीक जगह पर रंग चढ़ रहा है, ताकि किसी जगह पर भी ये अजीब ना लगे, हिली हुई तस्वीर ना दिखाई दे। जो हमारा मालिक है, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, जो चाहता है कि पूरे कलर हम में दिखाई दे, वो मुसीबतों में से गुजारता है। क्या मूसा पर कम मुसीबतें आई थी? बचपन में उसे घर से दरिया नील के सुपुर्द कर दिया गया। दरिया नील से फिरौन की बेटी ने उसको पाल लिया, और उसकी बेटी से फिर मूसा अपनी मां के घर आ गया। अपनी मां को भी मां नहीं कह सकता था, बहन को बहन नहीं कह सकता था। जवान हुआ तो हमदर्दियां जागी अपनी कौम की, और उस हमदर्दी का ये खमियाजा भुगतना पड़ा कि शाही
सेटअप छोड़कर इथोपिया को भाग गया। और इथोपिया में पता चल गया फिरौन को कि वो इथोपिया में है, तो फिर इथोपिया से उसने समुद्र पार किया और मदियान में आ गया। और मदियानी वो थे जो बनी कतूरा की औलाद है, उसका बड़ा बेटा जो उसका नाम था मदियान। बुत परस्तों के दरमियान रहा, खुदा से जो दूर लोग थे उनके दरमियान रहा। वहां पर शादी हो गई। जब शादी हुई, भेड़ बकरियां चरा रहा है। 40 साल बियाबान में गुजारे हैं। और खुदा ने कहा, जा अब मेरे लोगों को छुड़ा। 40 साल का था, घर से भागा, 40 साल बियाबान में रहा, 80 साल का हो गया। तो खुदा ने कहा, अब मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए जा। और उसकी बीवी उसको छोड़कर चली गई। अब बूढ़ा आदमी है और एक बड़ी जंग है फिरौन के साथ, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। हिम्मत वाला था, जुर्रत वाला था, हारने वाला नहीं था, धोखेबाज नहीं था। वो जानता था कि जो दुखों में से गुजरता है वही लीडर बनता है, वही खुदा का मंसूबा पूरा करता है। खुदा उसी को चुनता है जिसके अंदर कमिटमेंट है। दुख हो, पौलुस क्या कहता है रोमियो के खत में, मुझे मसीह की मोहब्बत से कौन सी चीज जुदा कर सकेगी? तंगी, तलवार, दुख, तकलीफ, हाल की बातें या मुस्तकबिल की? यानी कि मुस्तकबिल की बातों पर मैं किसी टाइम पे बात करूंगा कि कई लोग मुस्तकबिल के चक्रों में रहते हैं, कई हाल के चक्रों में रहते हैं। पौलुस कहता, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। इसलिए मुसीबतें आती हैं और उन्हीं पर आती हैं, जैसे इब्रानियों के खत में लिखा है। खुदा कहता है, मैं जिनको बेटा बनाता हूं उनको तंबीह भी करता हूं, उनको दुख भी देता हूं, उनको मुसीबत भी देता हूं। अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई तो तुम बेटे नहीं बल्कि हरामजादे ठहरे। अगर किसी को तंबीह नहीं की जाती, अगर बाप किसी को कुछ कहता नहीं या बाप कुछ बात कहने से डरता है, तो समझ ले कि वो अपनी मोहब्बत में तो मजबूर है, लेकिन आप अपना सबूत दे रहे हैं कि जैसे कि आप उसकी औलाद नहीं। उसकी औलाद होने के लिए अपने आप को बाप के हाथ में दे देना है। जैसे मसीह खुदावंद ने कहा, ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जैसे यूसुफ ने कहा कि ठीक है बाप, मैं ढूंढूंगा अपने भाइयों को, मैं उनको खुराक पहुंचाऊंगा। छोटा था, खुराक पहुंचाने के लिए गया, जवान हो गया, फिर भी खुराक पहुंचा रहा है। ना सिर्फ अपने बाप को खुराक पहुंचाई, ना सिर्फ अपने भाइयों को खुराक पहुंचाई, बल्कि मिस्रियों को भी खुराक दी। खुदा ने उसको चुन लिया कि ये खुराक देने वाला है, ये रोटी देने वाला है। और रोटी के बारे में आप देखें कि दुख सहती है गंदम, जौ पिस जाता है, आटा बन जाता है, लेकिन दूसरों के लिए वो जिंदगी का एक जोर है। इसलिए मेरे अजीजों, दुखों से ना भागे। कलाम में लिखा है, मैं तुझे मुसीबत की कटाली में डालकर परखूंगा। खुदा दुखों में से गुजार कर परखता है, और खुदा बहुत देकर भी परखता है कि क्या तू दुखों में मेरे साथ वफादार रहा। अब ये तू